باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے حیدرآباد کا، جہاں پر جاری مانسون بارشوں میں شہری اور بلدیاتی اداروں کی نااہلی پر حیدرآباد کے شہری پھٹ پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کروڑوں کا بجٹ ہونے کے باوجود کام ٹکے کا نہیں ہو رہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جبران خان۔ کل میں خود پھنس گیا، ادھر 1 گھنٹہ کھڑا رہا ہوں قبرستان روڈ پر، پانی کی لہر لگی پڑی ہے، پانی اتنا بڑا، بار بار گاڑی تنگ کر رہی ہے، بچے میرے ساتھ، بہت پریشان ہوں۔ اربوں روپے کا بجٹ ہے، میں نے ٹی وی میں دیکھا 25 ارب روپے کا بجٹ ہے، وہ کدھر گیا؟ جگہ جگہ پانی بھرا پڑا ہے سارا، کوئی سننے والا ہی نہیں، کس کو کہیں شکایت کر۔ میں تو سب کو بولتا ہوں کہ سب کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ 78 سال کی جشن آزادی منا رہے تھے اور ملک کی حالت دیکھیں، یعنی اور 12 لاکھ روپے جو یہ لیتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور کاشف شورو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ باقی لطیف آباد میں کیا، صرف جام شورو کی طرف جو شورو گھوٹ ہے صرف ادھر ہی توجہ ہے، باقی کچھ نہیں پتا کہ حیدرآباد کو اور کس طرح جو ہے نا ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ گورنمنٹ میری نظر میں جو ہے سندھ گورنمنٹ اور بلدیاتی نظام بالکل فیل ہے۔ ہمارے چیئرمین حضرات جو علاقے کے ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ عوام خود اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہے، یا پھر جو ہے 12 لاکھ روپے میں ان سے پوچھتا ہوں جا کہاں رہے ہیں وہ لوگ، وہ لگا کہاں رہے ہیں، لگا کہاں ہے؟ کیا خالی جعلی پی سی بنا کر اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں؟ کدھر ہے بلدیاتی ادارہ؟ کوئی بتائے کہ ایک بلدیاتی ادارہ، کوئی چیئرمین، کوئی وائس چیئرمین، کوئی کونسلر کسی جگہ پہ کھڑا ہو۔ یہاں پہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں، ہم لوگ لیڈیز گر رہی ہیں، ہم ان کو وہاں پہ ڈھکن رکھ رہے ہیں، وہاں پہ ان کی جگہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بلدیاتی ادارے کدھر نظر آ رہے ہیں؟ کوئی بتائے، کوئی ثبوت دے کے ایک نظر آ رہا ہے؟ یہاں کا میئر ان کا، ٹاؤن چیئرمین ان کے، ٹاؤن چیئرمین تو بہت دور کی بات، چیئرمین اور 12 لاکھ روپے کھا رہے ہیں، نہ کونسلر نظر آ رہا ہے، نہ چیئرمین نظر آ رہا ہے، کدھر ہیں یہ سارے؟ باقی کل جو بارش ہوئی، کل میں خود پھنس گیا ادھر۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے میرپور خاص اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال، نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ کے ہمراہ ڈی سی میرپور خاص ڈاکٹر عبدالرشید خان، میئر میرپور خاص عبدالرؤف غوری، متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ میئر نے موجودہ صورتحال، نکاسی آب سمیت ہنگامی اقدامات پر صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ شہر کے دورے کے بعد صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ کی زیر صدارت بارشوں کی صورتحال پر اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ صفائی اور نکاسیاب کے عمل کو مکمل کر کے شہر میں اسپرے کرایا جائے گا۔ عوامی خدمت میں کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کریں گے۔ تمام ریسکیو ریلیف ادارے آپس میں رابطے کو یقینی بنائیں۔ میئر میرپور خاص عبدالرؤف غوری نے کہا کہ شہر میں مین چاہراہوں سمیت اکثر علاقوں سے پانی کی نکاسی مکمل ہو چکی ہے۔ تمام پمپنگ اسٹیشنز فعال، عملہ مکمل حاضر اور مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔ پاک پتن کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب کے باعث کسانوں کو نقصانات کا سامنا ہے، وہیں پر حکومتی اقدامات بھی جاری ہیں۔ دیکھیں گے محمد ایوب چاولہ کی یہ رپورٹ۔ دریائے ستلج میں پاک پتن کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب کے بعد پانی کا ریلہ کئی ایکڑ زرعی اراضی بھی بہا کر لے گیا۔ کمشنر ساہیوال نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، ضلعی انتظامیہ کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، تمام ادارے موجود ہیں، اور بنیادی طور پہ اسے ٹیم ورک، ڈی سی صاحب بڑی محنت کر کے ہمارے تمام ادارے، اس میں ہیلتھ، لائف سٹاک، 1122 پولیس، ریونیو، سب لوگ موجود ہیں۔ ستلج میں پانی کی سطح میں کمی عارضی دکھائی دیتی ہے۔ حفاظتی بند کے پشتوں کی مرمت، فلڈ ریلیف کیمپس کا قیام اور ریسکیو کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سب سے اہم چیز ایک کنٹینجنسی پلان ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیفرنٹ سینیریو میں کرنا کیا ہے، تو بڑا تفصیلاً انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہوپفلی کوئی بھی ایسی اگر ایونچولیٹی ہوتی ہے تو دے آر ویل پریپیئرڈ۔ سیلاب کی نئی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے، جو کہ پاک پتن میں بھی بڑی تباہی مچا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ایوب چاولہ، ڈسٹرکٹ رپورٹر 5 نیوز، پاک پتن۔ قصور میں دریائے ستلج گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، پانی کی سطح 21 فٹ ہو گئی ہے، جس سے علاقہ مکینوں کو درمیانے درجے کے سیلاب کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ریسکیو نے سیلاب زدہ علاقے سے لوگوں کے انخلاء کا عمل تیز کر دیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے آرمی نے بھی ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ فلڈ ریلیف آپریشن ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیّر عالم خان نے کہا کہ قصور ضلع انتظامیہ سے مل کر دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر دیگر اضلاع سے
मजीद रेस्क्यू एहलकार और कश्तियां तलब कर ली गई हैं, जबकि रेस्क्यू रिलीफ कैंप की तादाद 9 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। 115 रेस्क्यू एहलकार 30 कश्तियों के साथ फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं। गुज़िश्ता रोज रेस्क्यू टीमों ने 444 अफराद के हंगामी इनखला को मुकम्मल किया। 470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया, जबकि फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 4000 से ज्यादा अफराद को बोट ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया की गई। एसएसपी कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरों की हिदायत पर एएसपी कश्मीर मोहम्मद आशिर का अवामी राबता खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में अवाम ने अपने मसाइल पेश किए, जिनमें रोजमर्रा मुश्किलात, अमन व अमान और जराइम के खात्मे से मुतालिक शिकायत शामिल थी। एएसपी कश्मीर मोहम्मद आशिर ने मौके पर ही मुतादिद मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए और अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस उनके साथ खड़ी है और उनकी मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जिला कश्मीर पुलिस अवामी खिदमत के जज्बे के साथ सरगर्म अमल है। याद रहे कि कश्मीर पुलिस की जानिब से घेलपुर कच्चे के इलाके में जराइम पेशानासे के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं, ताकि शहरियों को एक पुरअमन और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। खुसूर में बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शायर को बुजुर्ग हजरत बाबा भुल्ले शाह के उर्स का दूसरा रोज है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। ब्यूरो चीफ खुसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त अहाता दरबार में मौजूद हैं। सज्जाद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा क्या समा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बड़े सगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स की तकरीबात जो है ना, वो उसका आगाज जो है ना वो हो चुका है। लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो दरबार शरीफ पर हाजिरी दे रही है और इस वक्त खवातीन की भी एक जो है वो बड़ी तादाद जो है ना दरबार शरीफ के हाथा में मौजूद है और यहाँ पर दुआएं मांगी जा रही हैं। अपने मन की मुरादें पाने के लिए दुआएं यहाँ पर मांगी जा रही हैं। खवातीन जो है ना वह दिए जला रही हैं। लंगर और न्याज का सिलसिला यहाँ पर जारी है। हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बाजी, बताइएगा, आप इधर आए आज दरबार पे, उर्स पे, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँ, हर साल हम आते हैं, नर्स मुकाबला शुरू से, तो जो दिल की मुराद है पूरी होगी। आप उस मुबारक बाबा बुल्ले शाह कसूर आप जो भी दिल मुराद है, जो भी महफिल किया है वो आप आ सकते हैं। जो भी दिल मुराद है, जो भी की है, तो बाबा बुल्ले शाह दरबार में। जी, खवातीन की जैसे आपने बात सुनी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हम आए हैं अपने मन की मुरादें पाने के लिए। यहाँ पर दिल की मुराद जो है ना वो मांगी जा रही है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि खवातीन के साथ जो है मर्दों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर चादरें चढ़ाई जा रही है, लंगरों न्याज तकसीम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर हर ज़ायरीन को जो है ना चेक करने के बाद दरबार के हाथा में दाखिल होने दिया जा रहा है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे रतो डेरो का, जहां पर महकमा तालीम की जानिब से पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध के उन्वान से रैली निकाली गई। रैली स्कूल 1 से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जनरल बस स्टैंड पर खत्म पसीर हुई। रैली में मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जिला लाड़काना प्राइमरी अनीसुर रहमान जलबानी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रहमान सुमरो ने शिरकत की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए तालीमी अफसरान का कहना था कि रैली का मकसद अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को बेहतरीन तालीम फराहम करना है, ताकि वो पढ़ लिख कर मुल्क का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करें। झड्डू शहर में भी गुज़िश्ता 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। टाउन कमेटी की जानिब से पानी की निकासी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, ये जानेंगे निसार रजा से, जो इस वक्त वाइस चेयरमैन जफर आराई के साथ मौजूद हैं। बताइएगा निसार। हाँ जी बिल्कुल, पिछले 3 रोज से जुड्डू शहर में बरसात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई इलाके जो है नशेबी इलाके ज़ेर आ चुके हैं, जिनमें खासतौर पर कच्ची कॉलोनी, सगीर कॉलोनी, हाजी आशिक कॉलोनी है। आज हम मौजूद हैं जुड्डू टाउन कमेटी में और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन जफर आराई। इनसे पूछेंगे कि बरसात के हवाले से इन्होंने कितना काम किया और कौन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार रज़ा भाई, आपको ज़ाती पता है कि जिस वार्ड के अंदर मैं हूँ उसी वार्ड के अंदर डिस्पोजल है कच्ची कॉलोनी का, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 6 वार्ड का जो पानी है इसी कच्ची कॉलोनी के अंदर एंट्री होता है। ठीक है, और मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि लैट
होए चाहे नहीं हो, इसको मतलब डिस्पोजल ऑन द मतलब चालू हो जाते हैं। तकरीबन ये लाइट होती है तो लाइट पे भी मशीनें चलती हैं, जो लाइट नहीं होती तो डिस्पोजल इंजन पे चलते हैं, जिसके अंदर टाउन ऑफिसर हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे हैं, अमला हमारे साथ पूरा ताउन में। आप अपना नेक्स्ट टाइम किसी टाइम भी आप रात को भी जाके चेक करो, अभी जाके चेक करो, आपको मना हाजिर ड्यूटी उधर अमला मिलेगा। बाकी रही है जिधर खड्डे या अब खाली प्लाट पड़े उधर तो ज़ाहिर बात है पानी जमा है, वो इंशाल्लाह हम आस्ता आस्ता उसको भी रिकवर करेंगे। हाशिम कॉलोनी वाली साइड पे या इधर असगर कॉलोनी के अंदर भी रूटर चल रहे हैं, सगीर कॉलोनी के अंदर भी रूटर चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इसका मतलब जल्द से जल्द जो है इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। जैसा कि आपने वाइस चेयरमैन की बात सुनी, उन्होंने यही कहना था कि हमारी जो पूरी टीम है वो शहर में सफाई के अमल में लगी हुई है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द जुल्लो शहर को जो है वो साफ़ कर दिया जाएगा। पाकपतन में खातून के अंधे कत्ल का मामला हल हो गया है। मकतूला के मुलाजिम ने नकदी और तलाई जेवरात के लालच में आकर खातून का गला दबाकर उसे कत्ल करके कमरे को ताला लगाकर खुद फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात ब्यूरो चीफ सैयद अबुल हसन शाह की रिपोर्ट में जानेंगे। पाकपतन के गांव 93D की रैशी 70 साल सुरैया बीबी को इसके मुलाजम ने तलाई जेवरात और नकदी के लालच में आकर गला दबाकर कत्ल करके फरार हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जुवैद इकबाल चद्दर ने बताया कि पुलिस ने मुलाजम गुलाम फरीद को मशकूक जानकर रास्ते में लिया तो उसने इतराफे जुर्म कर। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पोस्टमार्टम में पता चला कि इसको गला दबा के कत्ल किया गया है। तो जो इलाके के मुश्तबे थे उनको इन्वेस्टिगेट किया गया। तो एक मुश्तबा जो उस मकतूला के घर मुलाजमत करता था उसका नाम गुलाम फरीद है। जब उसको इंटरोगेट किया गया तो उसने दौराने इन्वेस्टिगेशन उसने तस्लीम कर लिया कि इस खातून को मैंने और मेरे साथ अल्ताफ हुसैन मुल्जिम है, दोनों ने मिलकर गला दबा के कत्ल किया है। मकतूला के वारसान ने हुकूमत से कातिल को सख्त सजा दिलवाने का मुतालबा कर। मेरी खाला को एक मुलाजम होता सी, उन्हें मेरी खाला का कत्ल करता है, पैसे लालच चाहते हैं। पुलिस ने चंद दिन विच कत्ल प्लेस करके मुजरम पकड़ लिए ने। साडी गुजारिश है पाकिस्तान पुलिस पंजाब पुलिस को सख्त सजा दी जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद अबुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ 5 न्यूज पाकपतन। कबूला शरीफ के करीब दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब, पानी में मुसलसल इजाफा, दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा, इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। कबूला शरीफ में दरिया के करीबी बस्तियों चक यासीन, चक साबू का मौजा, शामदीन और बलाड़ी कसूरिया और इन समेत दीगर मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल हो गया। सैलाब की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला का आवाम के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप्स का दौरा, डीसी ने हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। रेस्क्यू टीमें पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बाबरकत महीने की इस्तक़बाली तैयारियों के लिए जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मुस्तफ़ाबाद के निजी शादी हॉल में तक़रीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने रब्बियुल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाने, रूहानी महाफिल के इनेकाद और तरबियती नशिस्तों के बारे में आगाही दी है। मज़ीद इसका अहवाल बता रहे हैं फैसल खान। फैसल बताइएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना अपनी आमद का ऐलान कर रहा है। मुस्तफ़ाबाद के मकामी हाल में इस्तक़बाल रब्बियुल अव्वल के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के रूए रवां अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी अलामा साहब फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व रफ़अना लका ज़िक्रक। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत को पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ और जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए आज इस्तक़बाल रब्बियुल अव्वल शरीफ के सिलसिले में यहाँ प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें हमारा मकसद, हमारी इंटेंशन ये है कि हम अपनी मुस्तफ़ाबाद की जो गयूर आवाम है उनके सामने इस
جذبے کو مزید بڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہمارا تن من دھن قربان ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور ساری زندگی غلام رہیں گے، اور اس سال جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے اور اپنی آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی حوالے سے مصطفیٰ آباد میں روحانی تقریبات کا انعقاد پورے ربیع الاول جاری رہے گا۔ جی، تفصیلات کے لیے شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ وہاڑی دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب، درجنوں بستیاں، گاؤں اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ وہاڑی دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر موزہ میرو بلوچ، موزہ جتیرا، موزہ نون، موزہ سلدیرا کی درجنوں بستیوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے اور ان موزہ جات کے رہائشی اور جانور سیلاب میں پھنس گئے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانوروں کے لیے چارہ ختم ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پانی 1 لاکھ کیوسک تک جائے گا۔ ادھر ہیڈ گنڈا سنگھ سے پانی کا اخراج بڑھتے ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے عارف والا مندر درمیانے درجے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ دریا کے قریبی رہائشیوں کو مال مویشیوں سمیت فوری دریا کا علاقہ چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جبکہ نچلی درجے کی سیلابی صورتحال سے سینکڑوں ایکڑ اراضی پہلے ہی ڈوب چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عامر طور سے جو اس وقت دریا پر ہی موجود ہیں۔ عامر طور بتائیے گا۔ جی، میں اس وقت عارف والا کے مقام دریائے ستلج پر موجود ہوں، جہاں نچلے درجے کے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ملحقہ آبادیوں جس میں بلاڑی قصوریا، ٹبی لال بیگ، موزہ شام دین جو سیلابی پانی کی لپیٹ میں ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں ایکڑ اراضی جس میں فصل دان، تل اور جوار کی فصلیں سیلاب کی نظر ہو چکی ہیں۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ضلعی انتظامیہ کی تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور دریا کے ملحقہ آبادیوں کے لوگوں کو مال مویشی سمیت فوری قریبی علاقے چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال سے سینکڑوں ایکڑ اراضی پہلے ہی ڈوب چکی ہیں۔ بڑے سیلابی ریلے میں مزید نقصان ہونے کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ اگر افسران کی بات کی جائے تو افسران نے جو ہے وہ سیلابی علاقوں کا وزٹ کیا ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں کے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی، احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے اوچ شریف کی شمس کالونی میں ابو ظبی نہر کے کنارے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ نامعلوم شخص نے 4 پائی پر لیٹے ہوئے 45 سالہ غلام شبیر پر تیزاب پھینک دیا۔ زخمی شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ ادھر فیصل آباد میں پنجاب فلور ملز مالکان کی جانب سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، 10 کلو کے تھیلے پر 200 روپے کے تھیلے پر 300 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری انتہائی پریشان ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے سلمان سامی سے۔ سلمان بتائیے گا۔ ہاں جی، فیصل آباد کے شہری جو ہیں اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہیں۔ دسترخوان سے روٹی غائب ہو چکی ہے اور بہت سارے کوئی گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ ایسے میں حکومت کی جانب سے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی تیار کرنی چاہیے، لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے شہریوں کے لیے ایک الگ ہی تماشا شروع ہو چکا ہے۔ فیصل آباد میں آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا، جبکہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 200 روپے اور 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 300 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کے ریٹ کی بات کی جائے تو ہول سیل مارکیٹ میں آٹے کا 15 کلو آٹے کا تھیلا 1400 سے لے کے 1450 روپے میں، اور جبکہ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی تھیلے کی جو قیمت ہے وہ 1500 روپے سے لے کے 1600 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کر کے جانتے ہیں۔ جی، آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟
जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से तो ये एक इंतहाई मायूस को इन्होंने ये जो फैसला किया है। आटा एक बुनियादी एक जो चीज़ है जो कि आम शहरी के लिए इसकी इंतहाई एक यानी कि बुनियादी चीज़ है, इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। तो इन्होंने कि इसका क्या गरीब आदमी को ये क्या मैसेज दे रहे, क्या जीने का हक भी छीनना इन्होंने बंद कर देना हुकूमत ने। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है मरियम नवाज शरीफ साहब से कम आटे की कीमतों में तो कमी करे, ताकि आम आदमी तो अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से गुजार सके। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तो रिलीफ शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा है कि जो आवाम से रिलीफ फराहम करने के वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए और आटे की कीमतों को कम किया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खानेवाल शहर को खूबसूरत और ग्रीन बनाने के लिए शहर में 400 से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। शजरकारी का स्लोगन एक पौधा लगाएं और शहर को माहौल दोस्त बनाएं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। खानेवाल शहर को खूबसूरत और ग्रीन बनाने के लिए मैडम नौरीन शाह साहिबा की जानिब से शहर भर में 400 से ज्यादा पौधे लगाए। मैडम नौरीन शाह साहिबा का कहना था कि मेरा खानेवाल के शहरी को ये पैगाम है कि हर घर का एक अफराद जरूर पौधा लगाए। पौधा लगाने से खानेवाल खूबसूरत और ग्रीन होगा। मैडम नौरीन शाह साहिबा का मजीद कहना था कि पौधा लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक पौधा लगाएं और खूबसूरत दोस्त माहौल बनाएं। ये है कि जितना हो सके थोड़ी सी भी जगह आपको मिले तो आप पौधे लगाएं। ग्रीनरी हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसी से हमारे मौसम पे असर होगा और उसी हमारे मौसम के साथ भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने ये सोचा है कि बजाय इसके कि मैं रोड साइड लगा रही हूँ, मेरी ये कोशिश है रोड साइड पौधे लगाऊं ताकि खूबसूरती में इजाफा हो, ये अच्छा लगे। जी, सब्जा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पौधा ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये बहुत फर्क पड़ता है हमारे लिए। तो मैं कहती हूँ कि सब लोग एक एक पौधा तो ज़रूर लगाएं, इससे हमारे माहौल में बहुत अच्छा इजाफा होगा। और ये सायादार पौधे लगाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और ये है कि हम इसी हवाले से हम एक एक पौधा लगाएं ताकि हमें पता चले कि हम एक जिंदा कौम है। उसके लिए हमारी ये एफर्ट होनी चाहिए कि हम सरसब्ज और शादाब बनाएं अपने मुल्क। खानेवाल शहर में पौधे लगाने से खानेवाल शहर खूबसूरत नजर आएगा। मैडम नूरुन शाह साहिबा की जानिब से पौधे लगाए गए जिससे खानेवाल के शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, चैनल 5 न्यूज़, खानेवाल। पाकपतन के अलहमरा चौक में फायरिंग का वाकया। शादी का मुतालबा न मानने पर ओबाश ने लड़की के दादा को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। 5 गोलियां लगने से 60 साला शख्स मुनीर नामी शख्स जान बहक हो गया। ओबाश नौजवान ने लड़की से शादी का मुतालबा किया था। दादा मुनीर ने इनकार किया। लड़की के वालिद का कहना है कि कई रोज से धमकियां मिल रही थी। ओबाश लड़का 1 साल से बेटी का पीछा करता था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रुख करेंगे झंका, जहां पर कब्जा माफिया और जखीरांदोज हो जाएं अब होशियार। पैरा फोर्स फील्ड में मुतहरिक हो गई है। शहर भर से बिला तफरीक तजावुजात के खात्मे का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अंसारी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाई विजन के तहत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जंग शहर में बिला तफरीक कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। अवामी फलाह और मौसर गवर्नेंस का फरोग, पीरा फोर्स, तजावुजात, प्राइस कंट्रोल और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुतहरिक। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आफाक मोरस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर साहब की हदायत के मुताबिक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि एंटी इंक्रोचमेंट, एंटी होर्डिंग और प्राइस कंट्रोल के खिलाफ वर्जी के अगेंस्ट प्राइस कंट्रोल में कोई भी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम लोग 3 दिन के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसके आज 3rd डे है। आज हम लोगों ने जगह जगह जाके दुकानों पे, डिफरेंट बाजार्स में, डिफरेंट रोड्स पे हमने अपना मैसेज कन्वे किया कि जो जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं वो अपनी हटा लें। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की अगर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो शहर से तजावुजात के साथ साथ नाजायज मुनाफाखोर जखीरा अंदोजों का खात्मा यकीनी होगा। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, 5 न्यूज़, झंग।
गुजरावाला में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने 300 लीटर चर्बी से तैयार ऑयल तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक चर्बी से निकले ऑयल में मेटानिल डाई शामिल करने से गंदा ऑयल खाने के ऑयल में इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस्तेमाल शुदा ऑयल में चर्बी से निकलने ऑयल की मिलावट से कुकिंग ऑयल तैयार करना संगीन जुर्म है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि ज्यादा मुनाफा के लालच में अवाम की सेहत से खेलने वालों का कारोबार जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। गुजरावाला में अब्रे रहमत, मौसम खुशगवार हो गया और शहर भर के नशेबी इलाके से रियाब आ गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी सफरुल्लाह चौधरी से। हाजी सफरुल्लाह, बताएगा कैसा मौसम है गुजरावाला का? जी बिल्कुल, अगर पहलवानों के शहर गुजरावाला में मौसम के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी दिनों से जो है मौसम गर्म हो चुका था, हबस थी और बिल्कुल शहरी जो है उनका घरों में भी रहना बहुत मुश्किल हो चुका था और बिल्कुल सारा दिन जो है शहरी जो है वो गर्मी में गुजारते थे, जिसकी वजह से शहरी जो है बड़ी ही परेशानी में मुब्तला थे। बिल्कुल आज अल्लाह ताला की तरफ से अब्रे रहमत हुई है, बारिश हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन भी आपको दिखाएगा कि इस वक्त मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी और थारी है और बिल्कुल बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, गहरे बादल भी छाए हुए हैं और बिल्कुल कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे हल्की बारिश होती भी नज़र आ रही है। मेरे पास कुछ पहलवान मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा कि आज बारिश के जो हो रही है उस बारे में क्या कहेंगे। सर आप बताएँ। जैसा कि आपने भैया बताया कि गर्मी की शिद्दत पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा थी। ये नौजवानों के साथ साथ हमारे बुजुर्गों का भी बड़ा दिल घबरा रहा था। गर्मी की वजह से जो है ना पसीना और स्मेल का मौसम था। अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी रहमत की है, बारिश का इम्कान बनाया है, जिससे जो हमारे बुजुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त और जो है ना खुशहाल हो गए और अल्लाह का शुक्र है हमारे मामला भी बड़े अच्छे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने गुजरावाले के पहलवान की बात है, उनका कहना है कि बुजुर्ग जो है वो भी बड़ी परेशानी में मुब्तला थे, गर्मी की वजह से परेशान थे और बिल्कुल शहर भर में अगर बात की जाए पानी खड़ा होने की बारिश की तो बिल्कुल शहर भर के जो निशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी भी खड़ा हो चुका है। सेटला टोल है, मॉडल टोल है, जिनाज स्टेडियम है, सियालकोट रोड है, पीपल्स कॉलोनी है और यहाँ पर जो है बारिश का पानी काफ़ी खड़ा होने की वजह से शहरियों को आमतौर पर मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक में जो आमतौर पर उसमें मुश्किलात का सामना। जब हमारी भाषा काम से बात हुई, उनका कहना था कि बिल्कुल जो हमारी टीमें निकल चुकी है, जल्दी शहर से पानी निकाल दिया जाएगा। ताल अभी तक जो शहर भर में पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी बड़ी मुश्किलात का जो उनको सामना हो रहा है। जी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने विहाड़ी में अराजी मुआवन की सहूलत का आगाज कर दिया है। अब शहरियों को घर की दहलीज पर अराजी सहूलियात मैसर होंगी। रिसोर्स सेंटर विहाड़ी में मुनक़िदा तकरीब में डायरेक्टर मॉनिटरिंग पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी राना शोएब ने इस सहूलत पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में आवाम को जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इससे कोई भी फर्द फ्रेंचाइज तर्ज अपने गाँव शहरों में ये सहूलत फीस अदा करके हासिल कर सकता है। सिंधु दरिया में मुसलसल इजाफे के बायस मटियारी के कच्चे के इलाकों में 68 खानदान के तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरा देहातियों का कहना है कि पीने के पानी और खुराक की शदीद किल्लत है, जबकि बच्चे पेट की बीमारियों, खारिश, मलेरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए हैं, मगर इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों में से कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड की अव्वलीन तरजीह है। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर लाहौर का ननकाना साहब में क्रैकडाउन, ग्रुप बाजार सैयदवाला और कोट संतराम में 3 फूड यूनिट्स और दूध सप्लायर गाड़ी की चेकिंग की गई है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि मारूफ स्वीट्स बिक्री को साबका दी गई हिदायत पर अमल दरामद न होने पर जुर्माने किया गया है।
उधर शोरकोट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से नशा मुकाओ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। नशा मुकाओ मुहिम के सिलसिले में रैली का भी इनेकाद किया गया है। नशा मुकाओ मुहिम के सिलसिले में TPO जंग कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कयानी की जानिब से रैली थाना शोरकोट सिटी से तहसील चौक तक निकाली गई। इस हवाले से TPO जंग बिलाल इफ्तिखार का कहना था कि रैली का मकसद नशा मुकाओ मुहिम के सिलसिले में शहरियों में आगाही फराहम करना है। पाकपतन दरियाए सुतले से मुल्हिका इलाकों में रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया की तरफ से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर रेस्क्यू पाकपतन की तरफ से 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर 10 रेस्क्यू बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू जहां पर रेस्क्यू एहलकार हर वक्त तैयार हैं जो दरिया में फंसे लोगों, घरों का सामान और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।